तेरे को कंफर्टेबल शुरू हुआ था हाँ जी महाराज। रूस की प्रिय दिन है какой преданный переводчик? Вы понимаете hindi? Чуть-чуть, нет, хорошо. What did you do? What did I do? Start. Where's the Hindali power? What if I speak in English and Hindi? क्या करते हैं? महाराज हिंदी में English speaking devotees, please gather in near the Aula tree. Akshay Prabhu, can you stand up? The English speaking devotees from Malaysia, Europe, USA. So I'll speak English, Hindi, okay? No, because Hare Krishna. Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna. You're happy to be here? You're happy that the program is going to end tomorrow? You want it extended? Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vanaba Givaradhari Gopi Jana Vanaba Givaradhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Sodanandana Praja Jana Ranjana साउंड को तेज कीजिए, साउंड को तेज करना। Sodanandana Praja Jana Ranjana
Jamnathira Brahmachari Jamnathira Brahmachari Jai Radha Madhava Bihari Jai Radha Madhava Bihari Gopi Jana Vallabha Giridhari Gopi Jana Vallabha Giridhari Sodanandana Prajajana Ranjana Sodanandana Prajajana Ranjana Nathira Brahmachari Jai Radha Madhava Bihari Jai Radha Madhava Bihari Gopi Jana Vallabha Giridhari Gopi Jana Vallabha Giridhari Sodanandana Prajajana Ranjana Sodanandana Prajajana Ranjana Jamnathira Brahmachari Jai Radha Madhava Bihari Jai Radha Madhava Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Pavijagacharya Saraswati Shival Divine Geshala Abhay Chandra Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki Shri Braj Mandal Parikram Ki Raman Reddy Ki All glories to the assembled devotees. 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 Hare Krishna. I still have a bad throat, but I'll try my best to speak. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. The person who is translating Russian, if I speak in Hindi, how much will you understand? 50% or 100%? Maharaj, you can speak Hindi. Huh? You can speak Hindi. But how much do you understand? How? No, more than half. More than half, but less than 100. So I'll speak in English and Hindi, okay? Hare Krishna. So, today is the second last day of your parikram. Better speak in Hindi. And I'm sure all of
just passed by the place where the Lord was bound. Utkal Bandhan место, которое all of you have darshan there. связывает. А вот все మనం దానిలో ఊకల్ బంధన్ అంటే దామోదర్ లీల స్థలం చూశారు కదా అందరూ सबने वहाँ दर्शन दिया. దామోదర్ లీల స్థలం ఊకల్ బంధన్ इस वक्त वहाँ केवल एक छोटा सा पेड़, అక్కడ थोड़ा सा पेड़ नजर आया हमें. అక్కడ చెట్టు చూశారు కదా ఒరిజినల్ కాదు ఆ స్థలంలో In brief, two pastimes of the Lord. One is the Damodar Leela pastime, దామోదర్ లీల పాస్టర్ the deliverance of the Yamuna trees by the supreme personality of God. मेरे ख्याल से मैं हिंदी में बोलूँगा. तो अभी आप उत्कल बंधन स्थली से आ रहे हो और आज हम ఊకల్ బంధన్ అంటే संक्षेप में స్థలం నుంచి వస్తున్నాం दो लीलाओं का स्मरण की चर्चा करेंगे. ఆ లీల एक है చేయాలి भगवान की बड़ी प्रसिद्ध दामोदर लीला और दूसरी है जो जब उन्होंने क्या उन्होंने दो यमुनार्जुन पेड़ों का उद्धार किया. तो ये दामोदर इस महीने आप रोज दामोदर अष्टक गाते हो. Every day we sing the Damodar prayers. в этот месяц мы तो भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं когда Кришна появляется, अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं और ये अद्भुत लीला है जिसकी तुलना ना कोई देवता देवी कर पाया है не могут ना कर सके. не могут подражать. तो भगवान ने अपनी बाल लीला प्रकट करना आरंभ कर दिया था Тогда как और आपने पढ़ा किस प्रकार अनेक असुरों का भी उन्होंने वध किया. многие демонов. तो यशोदा माता एक दिन Один день Ешода ఒక రోజున తర్వాత मक्खन पसंद भी थी. వెన్న తీసుకున్నారు Mother Yashoda was churning butter, singing в это время the glories of Krishna, открывала వెన్న chanting కృష్ణుడి the wonderful pastimes that the Lord had already performed. The Lord had already killed a very powerful demon, and the Brijvasis were just amazed, wondering, who is this boy? Is he a demigod? Or he seems to have some special mercy of Narayan. какой-то особой милости. तो भगवान ने अपनी अद्भुत लीला आरंभ कर दी थी. अनेक असुरों का वध हो गया था और यशोदा माता दही का मंथन करते हुए भगवान की इन लीलाओं का యశోదమాత కూడా की चर्चा भी कर दी. ఈ तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है? పాట పాడుతుంది हम सभी अपना कार्य करते करते भगवान का गुणगान कर सकते हैं. మనం కూడా ఏ పని చేస్తున్నప్పుడు आप चैतन्य चरितमृत में कथा पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी उनके साथी गुनीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे और गुनीचा मंदिर की सफाई करते हुए ఎప్పుడైతే हाथ से और पैरों से तो कार्य कर रहे थे पर जीभ से केवल हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहे थे. అందరూ కూడా तो जैसे मदर यशोदा भी कार्य करते समय भगवान के अनेक लीलाओं का गुणगान कर रहे На थे. воспевание तो посмертных качеств. साथ में दूध उबल रहा था. भगवान उनकी माता की गोद में बैठे थे Самое время ఇప్పుడు और दूध उबल रहा था. కృష్ణుడు तो माता ने देखा कि दूध उबल कर नीचे आ रहा है. అదే సమయంలో तो माता ने बेटे को छोड़ दिया गोद से नीचे పొంగింది और बेटा побежала क्रोधित होकर పాలు పొంగుతూనే అందరూ యశోదమాత కృష్ణుడు आगे जाकर उसने ఆ పాలకున్న वो मटकी तोड़ दी వచ్చింది जिसमें मक्खन था. тут же, और मक्खन लेकर कहाँ गए? убивала. बंदरों को मारने के लिए. जब यशोदा माता ने देखा कि वो मटकी टूट गई है वो समझ गई कि ये उनके बेटे की ఎప్పుడైతే शरण है.
और यशोदा माता రైలుకి వెళ్తే అక్కడ కుండలు गई వెన్న పడింది बेटे के पीछे తన కొడుకు लकड़ी लेकर ठीक Я пал और भगवान को पता था एक तरफ से तो కృష్ణ పద్ధతి मक्खन बांट रहे थे, Кришна, он दूसरी तरफ से उनको चिंता थी кормил обезьян, чтобы कि मेरी माँ किसी समय भी आएगी। знал. Скоро появится. और भगवान देख रहे थे और भगवान यशोदा माता Ему он озирал, लकड़ी के साथ बेटे को पकड़ने आई మనుషులు और చూడొచ్చు నన్ను జాగ్రత్త ఉన్నాడు जब बेटे को पकड़ लिया когда तो उन्होंने क्या देखा? схватилась Кришна. क्या देखा? Что она увидела? बेटा घबरा रहा है। వచ్చి పట్టుకున్నాడు और जो घबरा रहा है तो उन्होंने क्या किया? लकड़ी को फेंक दी। Когда она бросила палку, उन्होंने कहा कि она сказала, उन्होंने देखा कि बेटा घबरा रहा है तो लकड़ी को फेंक दिया боится, और он бросил палку. बेटा కళ్ళు నీళ్ళు వస్తాయి बेटे को తల్లి తీసుకోదు डांटने लगी। Начала отсутствовать. उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इतना शरारती है, रोज की गोपियां भी शिकायत करते रहती हैं Всегда на тебя жалуется, это और आप लोग ब्रह्मण्ड घाट में आपने वो लीला सुनी Пасман навязывает. कि भगवान ने पूरे विश्व का दर्शन दिया माता को, और उस समय भी आपने सुना था कि पड़ोस की गोपियां शिकायत कर रही थी यशोदा माता से कि आपका बेटा आकर हमारे घर में शरारत करता है, मक्खन चुराता है, दही चुराता है। तो यशोदा माता ने कहा कि И тут она मैं बेटे को पान देती हूँ అందరూ ప్రతిరోజు उखल के साथ గోపిలకి और बांध दूंगी थोड़ी देर के लिए, బయటకు వెళ్ళకుండా तो शैतानी भविष्य में कम करे। బయటకు వెళ్ళాలి जैसे क्लास में कभी कभी आप लोगों को याद है, आपको सजा मिली होगी, टीचर कहते थे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। तो माता का विचार ये था कि बेटे को बांध दिया जाए я его сейчас свяжу, और फिर बेटा शरारत करना कर्म कर देगा, बंद कर देगा। в будущем он не будет. तो माता ने एक छोटी रस्सी, एक रस्सी दी Что-то принесла, говорит, बेटे को बांधने के लिए। чтобы связать Кришну. తీసుకొచ్చింది वो रस्सी निकली 2 उंगली छोटी। Когда она обвязала его, కట్టడానికి फिर उन्होंने कई और रस्सियों को जोड़ा కొంచెం когда она принесла और ये सारी रस्सियां जोड़कर भी все веревки, она связала. क्या ఆ విధంగా ఇంకా 2 उंगली छोटी निकली। ఇంట్లో ఉన్న Начала तो опять ей не хватало. కత్తి यशोदा माता बड़ा प्रयास कर रही थी Тогда я что-то принялась बेटे को बांधने के लिए, изо всех сил, पर वो बांध नहीं पा रही थी। но она никак не могла. सारी रस्सियों को जोड़ दिया, सबको जोड़कर भी ये रस्सियां Его обвязать, 2 उंगली छोटी निकल रही थी। на дорогу. और जो 2 అంగుళాలు తగ్గింది दूसरी गोपियां थी पड़ोस की, అక్కడ నిలబడి वो ये लीला देख रहे थी कि यशोदा माता प्रयास कर रही है बांधने के लिए और सफल नहीं हो रही, तो भी हंसने लग गई। గోపిలందరూ और भगवान ने देखा कि पड़ोस की गोपियां కథాయిలో కూడా उनकी माँ पर हंस रही हैं, Смеются над ее мамой. तो फिर भगवान ने Тогда Кришна क्या किया? అప్పుడు కృష్ణుడు उनको बांधने दिया। तो इस विषय में позволил себя связать. प्रभुपाद जी समझाते हैं Прабхупада объясняет, कि ये 2 उंगलियों का छोटा होने का что вот это недостающее भाग ये है, एक है कि आप प्रयास करोगे это то, что наше собственное, तो ही परम भगवान को समझ सकोगे, если мы будем прикладывать усилия, और परम भगवान को समझ सकोगे केवल जब भगवान ఈ లీలలో प्रसन्न होंगे आपकी सेवा के द्वारा। जैसे कि себя, когда он будет यशोदा माता ने प्रयास तो बहुत किया очень хорошо, भगवान को बांधने के लिए, что изо всех сил, पर सफल नहीं हुई। फिर जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ ने
इतना प्रयास किया है, she is working so hard to tie me down. The other gopis are laughing. उन्होंने देखा कि सब हंसी कर रहे, उठा रहे हैं। भगवान मान गए कि मेरी माता मुझे बांध सकती है। और जब भगवान माने कि मेरी माता मुझे बांध सकती है, जब भी वो बांध पाए। तो हम सबको भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे तो परम भगवान की कृपा से हम उन्हें समझ पाएंगे, और अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान को समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। तो प्रयास कैसे करेंगे? ये है वैदिक भक्ति के द्वारा। आगे जाकर हम आपको भागवतम का एक श्लोक पढ़कर सुनाएंगे, जिसका उच्चारण यहाँ ये कुबेर के दो पुत्रों ने किया था, जो भी संबंधित है आज की लीला से। तो भगवान यशोदा माता ने कहाँ बांधा भगवान को? उखल के साथ। तो भगवान अपने भक्तों के वचनों का पालन करते हैं, और पिछले मिलेनियम में एक और लीला बीती थी। वो लीला थी नलकवारा और मणिग्रीवा की। ये दो थे कुबेर के पुत्र। और कुबेर कौन है? देवताओं के खजांची, बहुत धनी है। इस पृथ्वी पर के करोड़पतियों से लाखों गुना ज्यादा धनी है। तो मणिग्रीवा नलकवारा धनी पिता के बेटे थे, और ये देखा जाता है धन, खूबसूरती, भौतिक शिक्षा, ऊंचा पद, इन सब के प्रभाव से हम क्या कई बार घमंडित हो जाते हैं, और ये भावना होती है कि इंद्रिय तृप्ति किया जाए। तो इन चीजों को आध्यात्मिक जीवन का शत्रु माना जाता है। कहते आप समाज में भी देखते हो, जो धनी खानदान के पुत्र हैं या बेटियां हैं, उनके पास हर बुरी आदत है, और बहुत कम संख्या में धनी लोग भक्ति के मार्ग को स्वीकार करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास धन है तो धन के द्वारा हर चीज प्राप्त हो सकती है। तो नलकवारा और मणिग्रीवा क्योंकि कुबेर के पुत्र थे, शिव जी के भी उपासक थे, और कैलाश पर्वत वहां जाने की सुविधा थी उनके पास, और वहां मंदाकिनी गंगा बहती है। अक्सर हम गंगा में जाते हैं अपने हृदय को शुद्ध बनाने के लिए, पर कुबेर के पुत्र नलकवारा और मणिग्रीवा गंगा में स्त्रियों के साथ आनंद उठा रहे थे। और प्रभा जी इसके तात्पर्य में समझाते हैं कि गंगा में हम जाते हैं पवित्रता प्राप्त करने के लिए। यहाँ कुबेर के बेटे ये भौतिक कार्यों में जुड़े हुए थे। तो नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, और ये शराब के नशे में भी थे, वरुणी शराब पी रहे थे। तो नारद मुनि जब वहां से गुजर रहे थे, तो जो नंगी स्त्रियां थी उन्होंने तो अपने शरीर को ढक दिया, और ये जो दो बेटे थे वो नंगे रहे शराब के नशे में, पहचान नहीं पाए कि महान संत नारद मुनि यहाँ उपस्थित है। तो नारद मुनि ने सोचा कि मुझे
इन दो बेटों का उद्धार करने दो। तो नारद मुनि ने क्या किया, उन्हें श्राप दी कि तुम पेड़ बन जाओ, पर पेड़ कहाँ बनो? पेड़ बनो नंद महाराज के आंगन में। ये नहीं कि आप पेड़ बनो लंदन में या न्यूयॉर्क में, नंद महाराज के आंगन में। और ब्रज में नंद महाराज के आंगन में पेड़ भी अत्यंत भाग्यशाली है। जैसे हमारे कृष्ण बालराम मंदिर वृंदावन में वो तमाल का पेड़ है, बड़ा भाग्यशाली है वो पेड़। सारा दिन मंगल आरती से शाम की आरती तक वो पढ़ते रहते हैं। हम लोग एक आरती में जाते हैं और एक आरती के बाद भाग जाते हैं। थोड़ी देर मंदिर में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। पर ये जो पेड़ है उधर तमाल पेड़ सारा दिन राधा श्याम सुंदर का दर्शन दे रहा है, अत्यंत भाग्यशाली है। तो इन दो पुत्रों को ये श्राप दिया एक प्रकार से कि तुम पेड़ बनो, पर साथ में ये वर भी दिया कि देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात तुम्हें क्या प्राप्त होगा? परम भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। देवताओं के 100 वर्षों के लिए हमारे पृथ्वी का जो कैलेंडर है और देवताओं के कैलेंडर में महान अंतर है। हमारे पृथ्वी के 6 महीने उनके 12 घंटे के बराबर है। तो उन्हें पिछले मिलेनियम में ये श्राप दी थी कि देवताओं के 100 वर्षों के लिए तुम पेड़ बनो। और पेड़ क्या है? नंगे खड़े रहते हैं। और कुबेर के पुत्र भी नंगे खड़े थे महान संत नारद मुनि के सामने। और साथ में उन्होंने ये वर भी दिया कि देवताओं के 100 वर्षों की समाप्ति पर तुम्हें परम भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो आप सब ये श्राप स्वीकार करने को तैयार हो? तो भगवान भी अपने भक्तों के वचनों का पालन करते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप नरसिंहदेव भगवान की लीला में ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने लगभग हर प्रकार का वर प्राप्त कर लिया था। ना मेरी मृत्यु होगी सुबह या रात, शाम, ना आकाश में, ना पृथ्वी में, ना सागर में, ना किसी बीमारी के द्वारा, ना किसी पशु के द्वारा। तो हिरण्यकश्यप को सोचने लगे अब मुझे हर प्रकार का वर प्राप्त हो गया है, अब मैं अमर रहूंगा। पर भगवान ने अपने भक्त ब्रह्मा के सारे वचनों का पालन करते हुए क्या किया? हिरण्यकश्यप का वध किया। ब्रह्मा जी ने एक लेक्चर में कहा that after killing Hiranyakashipu, the Lord said, don't give these benedictions in future. You made my job very difficult. तो ब्रह्मा जी ने एक लेक्चर में कहा ब्रह्मा को हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात, भविष्य में इतनी ऐसे वर मत देना, तुमने मेरा कार्य बड़ा कठिन बना दिया था। तो भगवान अपने एक भक्तों के वचनों का पालन करते हैं। तो यशोदा माता ने बेटे को बांध दिया था उखल के साथ, पर भगवान को याद था कि मेरे भक्त नारद मुनि ने एक खास वर दिया है। वो ये है कि उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। तो भगवान को बांधा हुआ था उखल के साथ। भगवान आगे बढ़े और उसके द्वारा वो 2 वृक्ष गिरे। वो 2 वृक्ष जड़ हाँ
तो वो 2 वृक्ष गिरे और 2 पेड़ों से क्या निकले, और मणिग्रीवा। तो जब ये 2 पेड़ गिरे उस समय यशोदा माता रसोई में थी। जब 2 पेड़ गिरे इतनी भारी आवाज आई कि यशोदा माता भागे भागे आई, क्या गया क्या गया क्या गया। और दूसरे मित्रों ने कहा कि 2 पेड़ गिर गए और भगवान की कृपा आपके बेटे पर नहीं गिरे। मतलब पेड़ गिरे पर बेटे से जब बेटा जहाँ क्रॉल कर रहा था वहां से मुश्किल से 1 इंच दूर गिरे। तो यशोदा माता ने फिर आगे क्या पूछा, कैसे गिरे ये 2 पेड़। तो ग्वालों ने कहा, भगवान के मित्रों ने कहा, आपके बेटे ने गिराया है। तो यशोदा माता कहने लगी, कैसे संभव है, कैसे संभव है कि छोटा बेटा मेरा इन 2 बड़े पेड़ों को गिराया। नहीं नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करती। आंधी आई होगी, तेज तूफान आया होगा जिसके कारण ये 2 पेड़ गिरे। तो जब इन पेड़ों से निकले मनुग्रीवा, नालकोरा और मणिग्रीवा, इन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए कि परम भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ है। और प्रणाम करके उन्होंने नारद मुनि का आभार प्रकट किया कि नारद मुनि की कृपा से उन्हें आज परम भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। अरे वो और इसके पश्चात उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुतियों का उच्चारण किया। और एक खास श्लोक है जो कि आप भक्तों के लिए बहुत ही लाभदायी है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये श्लोक है, ये श्लोक है टेक्स्ट 38 भागवतम के 10 स्कंद के 10वें अध्याय में। इसका अनुवाद पढ़ूं अंग्रेजी में। Henceforward, may all our words describe your pastimes. May our ears engage in oral reception of your glories. May our hands, legs, and other senses engage in actions pleasing to you. And may our minds always think of your lotus feet. May our heads offer our obeisances to everything within this world, because all things are also your different forms. And may our eyes see the forms of Vaishnavas who are not different from you. तात्पर्य पढ़कर सुनाए। Purport by Srila Prabhupada. Here the process of understanding the Supreme Personality of Godhead is given. This is called Bhakti. Shramadam Kirtanam Vishnu Smaran Padasevanam Archanam Vandam Satyam Sakyam Atmanivedam. Everything should be engaged in the service of the Lord. Rishikesha Rishikena Sevanam. Everything, the mind, the body and the sense organs should be engaged in Krishna's service. This is to be learned from expert devotees like Narada, Swayambhu and Sambhu. This is the process. We cannot manufacture our own way of understanding the Supreme Personality of Godhead, but it is not that everything one manufactures or contacts leads us to understanding God. So, कुबेर के पुत्रों ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक का उच्चारण किया, जो कि हम भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, अब से हमारी वाणी सदा आपकी लीलाओं का उच्चारण करे। तो उन्होंने कहा अब से। तो ये अब से अर्थ का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। अज्ञानता में उन्होंने कई काल कार्य किए
नारद मुनि के समक्ष खड़े थे नंगे शराब के नशे में, पर अब नारद मुनि की कृपा से उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो अब वो ये गलती फिर से नहीं करना चाहते। उसी प्रकार हम सब भक्ति में जुड़े हैं और इससे पहले हम अज्ञानता की स्थिति में थे। तो जब आप भक्ति में जुड़ते हो, इसके पश्चात हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम किसी प्रकार से शास्त्र के विपरीत कार्य नहीं करें। तो आगे वो प्रार्थना करते हैं, हमारी वाणी सदा आपकी लीलाओं का गुणगान करे। तो जैसे हम परसों कह रहे थे, ब्रजमंडल परिक्रम के दौरान आपने उन स्थानों का दर्शन प्राप्त किया जहाँ की भगवान ने अपनी लीलाओं को अद्भुत लीलाओं को प्रकट किया था। तो हमारी वाणी द्वारा हमें क्या करना चाहिए? इन लीलाओं का कीर्तन उच्चारण करना चाहिए। और वाणी द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान के नामों का उच्चारण। रूप गोस्वामी जी समझाते हैं कि प्रजल्प द्वारा भक्ति नष्ट हो जाती है और कृष्ण कथा द्वारा भक्ति आगे बढ़ती है। तो वो कह रहे हैं कुबेर के पुत्र, हमारी जीव द्वारा हम सदा क्या करें? आपका गुणगान करें। जो तो हमें इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि जीव द्वारा हम सदा भगवान के नामों का उच्चारण करें और भगवान की लीलाओं का उच्चारण करें। और अगर हम कृष्ण कथा और भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे तो इसके द्वारा क्या लाभ होगा? चेत दर्पण मार्जनम, हृदय की शुद्धि प्राप्त होगी। तो आप सब जो ब्रजमंडल परिक्रम कर रहे हो, आप सबका ये भाव रहना चाहिए कि अब से हमें क्या करना है? जीव द्वारा केवल कृष्ण कथा में ही रुचि लेनी है। प्रजल्प में रुचि लेंगे तो भक्ति आस्ते आस्ते कमजोर होते जाएगी। इसीलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं किस प्रकार आपकी भक्ति नष्ट हो सकती है। त्याहारा प्रयश प्रजल्प नियमाग्रह जन संघर्ष लोल्यम सदवीर भक्ति विनती। और भगवान के नामों के विषय में जैसे आपने अनुभव किया है, जैसे अपने शास्त्रों में सुना है, आप दिन रात उच्चारण करो, प्रभु थकोगे नहीं। कई बार भौतिकवादी व्यक्ति पूछते हैं, आप एक ही मंत्र का उच्चारण दिन रात करते हो, थकते नहीं? You chanting the same name day and night, don't you get tired? तो हमारा क्या उत्तर है? नहीं थकते। क्यों? महाप्रभु ने क्या कहा इस विषय में? भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है, इसलिए भगवान के नामों को दिन रात कर सकते हो और थकोगे नहीं। आगे, may our ears engage in order। आप अगर जीभ के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करोगे तो कानों से भी यही सुनोगे। जब हिरण्यकशिपु ने बेटे से पूछा, ये बताओ आज तुमने पाठशाला में अध्यापकों के द्वारा क्या सीखा है? तो पिता ये उम्मीद कर रहे थे बेटा कहेगा आप इतने महान हो, और उसके बदले में बेटे ने क्या कहा? नवदा भक्ति का उपदेश दिया। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में नवदा भक्ति के श्लोक का वर्णन करते हैं। तो नलुकर मणिग्रीव ने ये प्रार्थना की कि अब से हमारी वाणी हमेशा आपका गुणगान करे और हमारे कान हमेशा आपके गुणगान को सुने। तो अगर कोई व्यक्ति आता है आपके सामने प्रजल्पा करने के लिए, और भक्तों को प्रजल्पा का शौक रहता है, तो आपको क्या कहना चाहिए? हाथ जोड़कर कह दीजिएगा कि प्रभु जी मैं प्रजल्पा में रुचि नहीं लेना चाहता, कृष्ण कथा करोगे तो हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए हमारा भाव। आगे कहते हैं हमारे हाथ पैर और इंद्रियां
सदा उस कार्य में जुड़े जिन कार्यों द्वारा हम आपको संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए हम सबका भाव। Our goal should be to only engage in activities that will please the Lord and not displease the Lord. In this connection, we have the advice that Chaitanya Mahaprabhu gave to Sanatana Goswami. This is described in Chaitanya Charitamrita. And in giving these 6 principles of Sharanagati, Lord Chaitanya said, 1, accept what is favorable for spiritual advancement, and 2, what did he say? Who knows? Reject what is unfavorable for spiritual advancement. So what is being stated here by the sons of Kuvera are that may hands and legs only be used in activities that will be pleasing. And what is pleasing to the Lord? Activities of devotional service. तो यहाँ कहा जा रहा है कि हम पैरों के, हाथों का, इंद्रियों का उपयोग केवल उन कार्यों में करें जिसके द्वारा आप संतुष्ट हो गए। और इस विषय में हमने कहा कि चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते कहा था कि वो कार्य करो जो कि अनुकूल है भक्ति के लिए, और जो प्रतिकूल है उसे क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। भगवान ने हमें अनेक इंद्रियां दी हैं। इस विषय में हमारे समक्ष अमरीश महाराज का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। अमरीश महाराज ने अपनी इंद्रियों का उपयोग किया भगवान की सेवा में। उदाहरण के लिए नेत्रों का, नेत्र का उपयोग आप कैसे कर सकते हो? भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन देने के लिए। और आजकल इंटरनेट की कृपा से अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप ISKCON के कई मूर्ति विग्रह का दर्शन रोज ले सकते हो। मायापुर, वृंदावन, दिल्ली, बॉम्बे, सबका दर्शन रोज ले सकते हो। तो आंखों द्वारा हमें भगवान के विग्रह का दर्शन लेना चाहिए। अमरीश महाराज ने पैरों का उपयोग किस लिए किया? मंदिर में चल के जाने के लिए। तो आप आज पैरों का उपयोग कर सकते हो किस लिए? मंदिर चल के जाने के लिए। आप कहो कि मंदिर तो बहुत दूर है, महाराज चल के कैसे जाएं, रोज पद यात्रा करना पड़ेगा। तो फिर पैरों का उपयोग करो मोटर चलाने में, साइकिल चलाने में, रिक्शा चलाने में, स्कूटर चलाने में, पर भगवान के मंदिर पहुंचने के लिए। फिर उन्होंने अपने हाथों का उपयोग किस लिए किया? भगवान के मंदिर को साफ करने में। कई बार जब आप मंदिर में आते हो, आपको एक छोटी सेवा दी जाती है, भगवान का मंदिर साफ करो। तो कभी कभी हम सोचते हैं हम क्या भंगी हैं क्या? ये तो भंगी का काम है। तो अगर आप भगवान के भंगी भी बनो तो बड़ी अच्छी बात है ना। उदाहरण के लिए रथ यात्रा शुरू होने से पहले महाराज प्रताप रुद्रा पूरी सड़क को सोने के झाड़ू से साफ करते थे और फिर उस सड़क को गुलाब के पानी से धोते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा कि राजा होते हुए इतनी विनम्रता से इस सेवा कर रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें उनकी जो अद्भुत लीला वो प्रकट कर रहे थे उसका दर्शन किया। क्या अद्भुत लीला थी कि रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु जी ने हर रथ के साथ 7 कीर्तन मंडियों की योजना की थी। पहले तो वो हर कीर्तन मंडी में जाकर नाच रहे थे, फिर उन्होंने अपना विस्तार किया और एक साथ सारे कीर्तन मंडियों में उपस्थित थे। और ये दिव्य दर्शन केवल उनके निकट के प्रिय भक्तों को प्राप्त हुआ, जिनमें से एक थे महाराज प्रताप रुद्र। तो अमरीश महाराज ने हाथों का उपयोग किया भगवान के मंदिर को साफ करने में। अगर आप मंदिर में आते हो और आपको
मंदिर साफ करना पड़े तो बुरा नहीं मानना। फिर अमरीश महाराज ने अपने नाकों का उपयोग किया, किस लिए? भगवान को अर्पण किया, फूल को सूंघने के लिए। कानों का उपयोग किया भगवान का गुणगान सुनने के लिए। जीभ का उपयोग किया, जीभ का भगवान का गुणगान के अलावा एक और कार्य है, विशाल ग्रहण करना। Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has said that the tongue, the belly, the genitals are all in a straight line. So अगर आप, if you control your tongue, then you can control the belly and the genitals. तो Bhakti Siddhanta जी समझाते हैं कि अगर आप जीभ को वश में ला सकते हो तो फिर दूसरी इंद्रियों को भी वश में ला सकते हो। तो इस प्रकार हमें अमरीश महाराज के उदाहरण से प्रेरणा लेनी चाहिए। मन, बुद्धि, इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में। आगे, and may our minds always think of your lotus feet. तो आगे कह रहे हैं हमारा मन सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करे। दूसरे शब्दों में मन सदा आपका स्मरण करे। इस विषय में गीता का ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। कौन सा? मन मना भाव मत भक्त्यो मन विहाजी मन माने वाचे सत्यम देव प्रति जन। गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सदा मेरा चिंतन करो। तो आप ये पूछ सकते हो भगवान का चिंतन सदा कैसे करें? हमारा मन तो भटकते रहता है, तो जहाँ भटकता है वहां से खींच कर वापस ले आओ। और हमारे संतों ने हमें उदाहरण दिया है कि भगवान का स्मरण करने के अनेक साधन हैं। एक है भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। तो आप उन स्थानों में जा रहे हो जहाँ भगवान ने लीला प्रकट की, कथा सुनते हो, उसका स्मरण करो। फिर भगवान के उपदेश का स्मरण करो। उदाहरण के लिए भागवतम के प्रथम स्कंद में आप देखते हो कि भगवान जब अप्रकट हुए, उनके सनातन साथी अर्जुन अत्यंत दुखी हो गए थे और अर्जुन ने फिर उन घटनाओं का स्मरण आरंभ किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी, उनके मित्र के सहयोग के कारण संभव हो पाए। उसके पश्चात अर्जुन ने गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया। जब उन्होंने गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया, उन्हें ऐसे लगा कि परम भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं और उनका जो शोक, दुख था, समाप्त हो गया और वो फिर से प्रसन्न हो गए। तो इन श्लोकों के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे अर्जुन ने भगवान के गीता के संदेश का स्मरण किया, उसी प्रकार इस संस्था के सारे भक्तों को क्या करना चाहिए? गीता के संदेश का स्मरण करना चाहिए। और अगर आप गीता के संदेश का स्मरण करोगे तो खुद ही खुद भौतिक कार्यों के लिए स्थान नहीं रहेगा। तो मन, ये एक और उदाहरण है, क्योंकि हमारा विषय है भगवान का चिंतन करना सदा। तो क्या है साधन? एक है उनकी अनेक लीलाओं का स्मरण करो, उनके संदेश का स्मरण करो, फिर उनकी इच्छा, आदेश का स्मरण करो। जैसे प्रहलाद महाराज, उन्होंने चिंता की, उनका क्या था? उनकी चिंता किस प्रकार पतितों का उद्धार होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपना उद्धार, अपना स्वार्थ की, मुझे अपने स्वार्थ की चिंता नहीं है, मुझे उनकी चिंता है वो जीव जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ कुबेर के पुत्र कह रहे हैं
कि हमारा मन सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करे, जिसका अर्थ है सदा आपका स्मरण करे। चैतन्य चरितमृत में आप रामानंद रॉय और महाप्रभु का वार्तालाप पढ़ते हो। भगवान अपने भक्तों की महिमा को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान ने रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें एक प्रश्न ये था कि हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए सदा। और रामानंद रॉय ने कहा भगवान के नामों का, लीलाओं का और गुणों का। भागवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हमें मन को बंधु बनाना चाहिए और शत्रु नहीं। मन बंधु जब माना जाता है जब मन शास्त्र पर आधारित स्मरण कर रहा है, और शत्रु कब माना जाता है जब मन शास्त्र के विपरीत विचारों का विचार कर रहा है। तो वो कह रहे हैं हमारा मन सदा आपका ही स्मरण करे। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने हमें अनेक नियम दिए हैं, परंतु वो कहते हैं कि इन सब नियमों का मूल भाव यह है कि आप सदा कृष्ण का स्मरण करो और क्या, कृष्ण को कभी भूलो नहीं। तो आप में से कितने भक्तों की इच्छा है कि हम सदा कृष्ण का स्मरण करें? कितने भक्तों की इच्छा है कि हम कृष्ण को भूलें? पर इच्छा तो आपने प्रकट कर ली कि भगवान का स्मरण करें, पर कितने भक्त तैयार हैं ये प्रयास करने के लिए? सब। ओ बड़ी अच्छी बात है, तो आप सब शुद्ध भक्त बन जाओ। अच्छा, फिर आगे कहते हैं ऑफर बिजनेस। तो आगे कहते हैं हम सिर द्वारा भगवान को प्रणाम करें और हमारे नेत्रों के द्वारा हम सदा वैष्णव का दर्शन प्राप्त करें जो कि आपसे अभिन्न है। तो वैष्णव का दर्शन प्राप्त करना या वैष्णव की संगत प्राप्त करना, ये दोनों एक ही है। वैष्णव के जब दर्शन प्राप्त करते हो तो संग भी प्राप्त करते हो। तो हमारा भाव होना चाहिए कि हम वैष्णव के भक्तों के साथ रहें। जैसे आप पिछले महीने ब्रजमंडल कर रहे हो तो आप लगभग 1800-1900 भक्त एक साथ रह रहे हो। तो चाहे आप कहाँ भी हो, हमारा प्रयास रहना चाहिए क्या कि हम भक्तों की संगत में रहें। साधु संग सर्वशास्त्र का लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये होना चाहिए हमारा भाव। कई बार जब हम भक्तों की संगत में रहते हैं तो हम भक्तों के नुक्सों को देखते हैं, कमियों को देखते हैं, पर हमारा भाव होना चाहिए कि हम भक्तों के गुणों को देखें और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करें। असत्संग त्यागा ए वैष्णवाचार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उन भौतिकवादियों की संगत से जुदा रहो। तो आप सबका ये भाव होना चाहिए कि भक्तों की संगत में आप रहो, और जब भक्तों की संगत में रहोगे तो भक्ति आसान हो जाएगी, है कि नहीं? प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की जिसके आज केंद्र विश्व के कोने कोने में है, और लगभग विश्व के हर कोने में कहाँ न कहाँ केंद्र है, केंद्र नहीं है तो भक्ति वृक्ष नामहा के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आप लोग जहाँ भी रहते हो आपको इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि आप बकायदा भक्तों की संगत प्राप्त कर सको, और भक्तों की संगत में रहकर भक्ति के नियमों का पालन सरल हो जाता है। और खास करके जो गृहस्थ हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, उन्हें हफ्ते में 5 दिन बाहर भौतिकवादियों की संगत में रहना पड़ता है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि हर रविवार को मंदिर जाओ, भक्तों की संगत का लाभ उठाओ और भगवान के दर्शन को प्राप्त करो। तो इस प्रकार भगवान ने नारद मुनि के वचन का पालन किया और
यमुना अर्जुन का उद्धार किया। और तो आप लोग उस लीला से, उस स्थान से आए हो जहाँ की मैंने सोचा था ये श्लोक पढ़कर आपको सुनाएं आज, क्योंकि ये श्लोक का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। और अगर हम इस श्लोक का लाभ उठाएं तो बिना शंका के भक्ति के मार्ग में आप सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो कल आप सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर में भी गए थे। तो वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं, ये मंजारी के अवतार। और सनातन गोस्वामी और रूपा गोस्वामी ने हमें अनेक ग्रंथ भी दिए हैं। जैसे आप जानते हो, सनातन उनके भाई रूपा मुसलमान राजा नवाब हुसैन शाह के राज्य का शासन कर रहे थे। आज से 500 साल पूर्व ये नवाब हुसैन शाह की राजधानी थी, विश्व की सबसे धनी राजधानी थी। आज तो आप सोचते हो कि अमेरिका वगैरह धनी देश है, पर 500 साल पूर्व भारत सबसे धनी देश माना जाता था। और भारत का सबसे धनी स्थान था बंगाल का। और उस स्थान का शासन कौन कर रहे थे? ये तो नवाब हुसैन शाह, और जिसके प्रधानमंत्री खजांची थे ये 2 भाई। तो पहले तो रूपा गोस्वामी ने अपनी सरकारी नौकरी त्यागी, और जब उन्होंने नौकरी त्यागी, उनके पास एक पूरी नाव थी जो सोने के सिक्कों के साथ भरी हुई थी, है ना। और उन्होंने इस धन को कैसे बांटा? आधा उन्होंने दिया ब्राह्मणों को, 25% दिया रिश्तेदारों को, और 25% रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। सनातन गोस्वामी की भी इतनी रुचि नहीं थी सरकारी नौकरी करने में। असल में हिस्टोरियंस ने कहा है कि इन 2 को जबरदस्ती जोड़ा था राजा की नौकरी में। राजा था मुसलमान, प्रजा थी लगभग 99% हिंदू। तो राजा को चाहिए था ऐसे व्यक्ति जिनके प्रति प्रजा की श्रद्धा हो। और राजा ने देखा कि ये 2 भाइयों का तो सब आदर करते हैं, तो उन्होंने धमकी देकर उनको नौकरी में जोड़ा। तुम शासन करो, कार्य करो, नहीं तो मैं हिंदू मंदिरों को उखाड़ दूंगा। तो सनातन गोस्वामी ने एक समय दफ्तर नहीं गए 1 महीने के लिए। सूचना भेजी मैं बीमार हूँ। तो क्या कर रहे थे वो कि वो 20-25 ब्राह्मणों के साथ बैठकर शास्त्र भागवतम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। राजा ने आगे युद्ध करने जाना था उड़ीसा के राजा के साथ। उसने कहा कि सनातन गोस्वामी के बिगड़ में ये देखभाल किसके जिम्मेदारी पर सौंपूं। तो उन्होंने अपने डॉक्टर को भेजा, जाकर देखो क्या बीमारी है सनातन की। तो राजा के डॉक्टर आ गए सनातन के घर। आज के जमाने में तो अगर कोई आपके घर में आना चाहता है तो उसको घंटी बजानी पड़ती है। आप पूछते कौन है, और अगर आप नहीं चाहते वो अंदर आए तो आप घंटी नहीं बजाते, है ना। आप टेलीफोन, आपका सेल फोन आता है, आप देखते पहले कौन है ना। और फिर अगर कोई कर्जे वाला है तो जवाब नहीं देते। तो
ये नवाब का डॉक्टर सीधा अंदर घुस गया और वहां उसने देखा सनातन तो बिल्कुल ठीक है, ब्राह्मणों के साथ भागवतम पढ़ रहे। तो उन्होंने राजा से कहा कि सनातन तो बिल्कुल ठीक है। तो राजा ने कहा हाँ तुम वहां पर अपनी जिम्मेदारी उठाओ। सनातन ने कहा अब तो मेरी कोई रुचि नहीं इस कार्य में। तो राजा ने उन्हें जेल में डाल दिया और राजा आगे बढ़े। जब वो जेल में थे उन्हें सूचना पहुंची कि उनके भाई एक रकम छोड़ी है उन्होंने एक बनी एक व्यापारी के साथ। उन दिन में कोई बैंक नहीं था, पैसा लोग व्यापारी के पास रखते थे। सनातन ने कैदी को कहा, जेलर को, ये लो इतना धन मुझे छोड़ दो। नहीं भाई तुम तो बड़े प्रसिद्ध कैदी हो, तो मैं छोड़ूंगा तो राजा मुझे नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने रकम बढ़ा दी। खैर सनातन पे निकले और उनके साथ तो मैं पूछा था वहां से कितना टाइम हो रहा है। तो सनातन निकले वहां से छुप कर। उनके साथ एक सेवक था ईशान। तो पहले वो रुके एक यात्री स्थान में। उस यात्री स्थान में जो मालिक था उसके पास एक जोशी भी था। वो पहले अंदाजा लगा लेता था कितना धनी है ये व्यक्ति, और अगर धनी व्यक्ति होता था तो उसको लूट लेते थे रात को, जैसे कई स्थानों में होता है। तो जब सनातन वहां रुके थे तो होटल का मालिक बहुत खास देखभाल कर रहा था सनातन की, क्या चाहिए, आगे पीछे नाच रहा था। तो सनातन को शक हुआ कि मेरे पास धन तो नहीं है। तो उन्होंने अपने नौकर से पूछा, ईशान तुम धन तो नहीं उठा रहे? ईशान ने कहा हाँ मेरे पास सामने 7 सोने के सिक्के हैं। तो सनातन ने कहा तुम मौत को साथ क्यों ले जा रहे हो? लोगों को पता लगेगा किसी को कि हमारे पास इतना धन है तो हमें मार भी देंगे। तो सनातन ये 7 सिक्के लेकर होटल के मालिक को कहा ये ले लो सिक्के और मुझे वहां जाना है छुप कर महाप्रभु को मिलने। होटल के मालिक ने कहा मेरे जोशी ने मुझे कहा था आपके पास 8 सिक्के हैं और मैं आज रात को आपको मारने वाला था ये लेने के लिए, पर आपने मेरी जान बचा दी पापों के परिणाम से। फिर सनातन ने उसको और ईशान को घर भेज दिया। फिर से उसने झूठ बोला, 8 से 7 बोला। तो रास्ते में सनातन रुके उनके ब्रदर इन लॉ श्रीकांत के घर। श्रीकांत भी एक मुसलमान राजा का सेवक था जो कि 3 लाख सोने के सिक्कों के साथ घोड़ों को खरीदने आया था। श्रीकांत ने जब देखा सनातन इतनी बड़ी दाढ़ी वाली फटे हुए कपड़ों के साथ, उन्होंने कहा अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम, इतने बड़े ऊंचे पद में थे अब क्या ये फटे हुए कपड़े पहन रहे हो, ऊंची बड़ी दाढ़ी है। तो उन्होंने एक बहुत महंगी चादर दे दी उन्हें पहनने के लिए। और सनातन फिर पहुंचे वाराणसी जहाँ वो जा रहे थे महाप्रभु जी के दर्शन के। उस वक्त चैतन्य महाप्रभु एक चंद्रशेखर के घर में ठहरे थे। ये जो चंद्रशेखर व्यक्ति था सूत्रा खानदान का। तो महाप्रभु उसके घर में ठहरे। क्यों?
शुद्र था पर था भगवान का भक्त। आजकल भारत में सब ऊंची जाति नीची जाति की चिंता करते हैं, पर शास्त्र में कहा गया है कल शुद्ध समूह, हम ही सब नीची जाति के। तो महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा बाहर एक संत खड़ा है, उसे अंदर बुलाओ। और वो बाहर आए, उन्होंने देखा कोई संत नहीं दिखा, एक मौला बड़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति दिख रहा था। तो उन्होंने सोचा ये तो कोई मौला खड़ा है। तो आप लौट कर कहने लगे नहीं वहां तो कोई नहीं है, एक मौला है कर रहे। तो वो मौला नहीं, वो बड़ा संत है। तो जब वो आए अंदर सनातन, तो महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया और जब घूर कर उनकी महंगी चादर को देख रहे थे जो कि उनके रिश्तेदार श्रीकांत ने दी थी, तो सनातन समझ गए कि महाप्रभु इससे खुश नहीं है। तो कहाँ गए, गंगा के किनारे एक बूढ़ा बंगाली यात्री था, उसको कहा आप मेरी महंगी चादर ले लो और मुझे बदले में आपका फटा हुआ कंबल दीजिए। तो कहते हुए वो जो बंगाली यात्री कहने लगा तो मखौल कर रहे हो क्या, तुम्हारी इतनी महंगी चादर दोगे मेरे फटे हुए कंबल के लिए। तो जब सनातन महाप्रभु के पास पहुंचे, महाप्रभु ने देखा ये फटी हुई चादर उन्होंने ओढ़ी हुई है। तो कहने लगे महाप्रभु एक अच्छा फिजिशियन जो है डॉक्टर बीमारी को ठीक करके बीमारी का कारण नहीं रहने देता। तो उनका मतलब था अब आपने सब संसार त्यागा है, संन्यास का जीवन ग्रहण करने के लिए त्यागी का जीवन, तो महंगे वस्त्रों को ग्रहण करना शोभा नहीं देता। तो सनातन गोस्वामी की अनेक लीलाएं हैं और उन्होंने अनेक ग्रंथ भी हमें दिए हैं। तो हम सब गोस्वामियों के आभारी हैं कि उन्होंने हमें इतना गहरा सिद्धांत दिया है जिसका हम सब लाभ उठा रहे हैं भक्ति के नियमों का, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। सनातन गोस्वामी की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे